Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, I am Hafiz Ihtishamul Haque and you are watching The Knowledge Cave. Students, we are on chapter number 3 of the 9th class mathematics, which is the logarithm, and now today we have to solve the exercise 3.3, and I hope inshallah you will learn as better as you can, and I will try my best to give you the best information and best way to understand the logarithm. So let's start from the beginning of our exercise. So students, let's start from the question number 1. Students, question number 1, part number 1 is written as log of A multiplied by B. Students, as we know that we just have to write the values of logarithm into its simplest form. Students, simply log में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी हम अपनी लॉग की वैल्यूज़ को शिफ्ट करते हैं या उसके पैटर्न को चेंज करके लिखते हैं सिंपल फॉर्म के अंदर या सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर, तो स्टूडेंट्स हम लोग मल्टीप्लिकेशन का प्लस यानी एडिशन के साथ एक रिलेशन क्रिएट करते हैं और इसी तरह से डिवीजन का सब्ट्रैक्शन के साथ। सो हम अपनी एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में शिफ्ट और चेंज करते हैं। सो सेम एज स्टूडेंट्स, जब हम अपनी लॉग फाइंड आउट करेंगे लॉग ऑफ a एंड b, सो वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई द लॉग विद a एंड b सेपरेटली, एंड व्हेन वी राइट इट इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म, सो इट कैन बी रिटन एज log a plus log b, and finally this is answer. Students, same as now we are going to do a question number 2, means third part of this question, and which is log of 21 multiplied by 5 and divided by 8. स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हमारे पास 3 ऑपरेशन आ चुके हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे एक लॉग ऑपरेशन है, सेकेंडली मल्टीप्लिकेशन, एंड देन थर्ड इज डिवीजन. सो वी जस्ट हैव टू राइट इन अ मल्टीपल लॉगरिथमिक फॉर्म. So when we write it in a multiple logarithmic form, the value of this part is just written as log 21 multiplied by 5, and this division is just converted into a subtraction sign, log 8. And in second step, and that is the last one, we just have to same multiply the value of log with 21 and 5 as we have done in question number 1, part number 1. So it will be just come as log of 2 plus log of 5 minus log of 8, and student, this is the answer. The statement of question number 2 is log of x minus 2 log of x plus 3 log of x plus 1 minus log of x square minus 1. In this question, question number 2, we just have to write the values of logarithm, that is in multiple form. We just have to write in a single form of logarithm. So students, let's see how could we write it as. The solution started, and I am going to, first of all, I am going to separate the value of addition and subtraction. Log of x plus 3 log of x plus 1 minus 2 log of x minus log of x square minus 1. Students, after this step, I am going to put the powers on the value. So it will become as log
एक्स स्क्वायर माइनस 1। और स्टूडेंट्स इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों ने जो हमारे पास एडिशनल वैल्यू है और सब्ट्रैक्शन वैल्यू है, हम इनको इनकी मल्टीप्लिकेटिव और डिविजनल वैल्यूज के अंदर लिखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे स्टूडेंट्स आप कोशिश करें यहाँ पर माइनस का साइन कॉमन ले लें ताकि आप इसको भी मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिख सकें। लेट्स सी स्टूडेंट्स, ये वैल्यू एडिशन की हम सिंगल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज x इज मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 cube. So when I take a common negative sign, it will come as log x square plus log of x square minus 1। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी एडिशन की फॉर्म है और अगर हम इस एडिशन की फॉर्म को इसकी मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो ये सिंगल लॉग में शिफ्ट होगा। देन स्टूडेंट्स वी कैन राइट एज log x square dot x square minus 1 and it will become in a single logarithmic form and the sign of addition is converted into a multiplicative sign। Students, let's see, now we have only a 2 log and a 1 negative sign, so we just convert this negative sign into a divisional value, so the answer will become as log of x plus 1 cube and over x square dot x square minus 1। स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि हमारी ये डबल लॉगरिथमिक फॉर्म की जो वैल्यू थी हमने इसको और फर्दर सिंगल लॉगरिथमिक वैल्यू के अंदर शिफ्ट कर दिया। अब हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास कहीं हमारी वैल्यूज की कटिंग हो सकती है फर्दर, तो अगर कोई पॉसिबिलिटी होगी हमारी वैल्यू की कटिंग की तो हम उसको सॉल्व आउट करेंगे एंड वी सॉल्व इट एज मैक्सिमम एज वी कैन। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे जो हमारे पास वैल्यू की कटिंग होती है दैट इज एक्स स्क्वायर विद एक्स स्टूडेंट्स यहाँ पर आप एक और वैल्यू भी देख सकते हैं, जैसे लेट्स सी कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेट्स सी कि अगर मैं 1 का स्क्वायर ले लूँ तो आंसर 1 के इक्वल ही रहेगा। सो इट्स मीन्स दैट आई कैन राइट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। सो अगर मैं इस वैल्यू को इस तरह से लिख दूँ तो फर्दर हमारे पास एक फॉर्मूला यूज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, विच इज इक्वल टू a minus b and a plus b। so the value, by using this formula we can write the denominator as x plus 1 whole cube x dot x plus 1 x minus 1। so students, when you have the value as x plus 1 or x minus 1, अब यहाँ पर आप एक और वैल्यू की कटिंग कर सकते हैं which is x plus 1 with this power and the power left is only 2। So finally the answer is written as in a single logarithmic form x plus 1 square divided by x dot x minus 1। And students, this is the answer and we have done our question number 2। Let's move to the question number 3। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 के अपने 2 पार्ट करने लगे और बाकी कुछ पार्ट्स हैं वो आप उनको अपने एज असाइनमेंट सॉल्व कीजिएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, हम उसमें सबसे पहले नंबर पे अपने क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट चूज कर रहे हैं एंड दैट इज लॉग ऑफ 25 माइनस 2 log of 3। So students, as previous as we have done in a question number 2, we just have to write it in a single logarithmic form। तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 को सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म के अंदर लिखेंगे। उसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि आपने मल्टीप्लिकेशन को एडिशन और डिवीजन को सब्ट्रैक्शन के साथ शिफ्ट करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास 2 लॉगरिथम की फॉर्म है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बिफोर लॉग कोई नंबर तो मेंशन तो नहीं है, यहाँ पर हमारे पास 2 है तो हम इसको इसकी पावर में मेंशन करेंगे।
So the value will be written as log of 25 minus log 3 square. Students, then next in a second step we just write the multiple logarithm in a single form and the operation of subtraction is converted into the operation of division. Log of 25 and over 3 square, you may take the square of this value, so the answer is written as 25 over 9. So students, hence this is our answer. इसका स्टूडेंट हम एक पार्ट और करते हैं, हम इसमें एक पार्ट जो करने लगे हैं विच इज पार्ट नंबर 4. सो स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 इज log of 5 plus log of 6 and minus log of 2. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने इस ऑपरेशन को भी सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म के अंदर मेंशन करना है और इसके लिए भी हम ऐसे ही सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास एडिशन कहाँ है और सब्ट्रैक्शन कहाँ है. हम जो एडिशन वाली वैल्यूज हैं उनको सबसे पहले सॉल्व करेंगे और इसको मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिखेंगे. सो इट विल बी वैल्यू रिटन एज log of 5 multiplied by 6 then minus log of 2. स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट स्टेप अब हम ये जो दो लॉगरिथम की वैल्यूज आ गई हैं इनको हम सिंगल लॉग के अंदर लिखेंगे और जो सब्ट्रैक्शन का साइन है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इसकी डिवीजन के अंदर. सो द वैल्यू इज 5 multiplied by 6 and over. So students, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू हमारी सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में आ चुकी हैं एंड नाउ दिस इज आंसर. सो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग होगी. मोस्टली हम पीछे वाले क्वेश्चंस के अंदर अपनी वैल्यूज को सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म के अंदर लिख सकते थे और यहाँ पर हम अपने सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म से उसको मल्टीपल लॉगरिथम की फॉर्म के अंदर लिख रहे थे. लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग अब यूज करेंगे अपना चेंज ऑफ बेस रूल जो हमने अपनी पिछले टॉपिक के अंदर लॉज ऑफ लॉगरिथम के अंदर अंडरस्टैंड किया था, फोर्थ और लास्ट लॉ. मैं उसका कुछ हिंट भी आपको यहाँ पर दे दूंगा और इसी के साथ हम उसी की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. एक पार्ट स्टूडेंट्स मैं आपको करवा रहा हूँ और एक पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे. सो लेट्स सी के आई एम गोइंग टू चूज द पार्ट नंबर 2 of the question number 4 which is written as log with the base 5 which is written as log of 3 with base 5 multiplied by log of 25 with the base 3. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम ये भी देख लें कि हमारे पास चेंज ऑफ बेस रूल क्या था. बेस रूल स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ विच इज log a base log of n with base a is equal to log of n with base b and over log of a with base b. So students, this is the change of base rule which is also the fourth law of logarithm. So according to this we are going to solve the part number 2 of the question number 4. So let's see. स्टूडेंट, सबसे पहले नंबर पे आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इस लॉग के सामने जो वैल्यू लिखी है, जिस वैल्यू का लॉग हम फाइंड आउट करने वाले हैं, इसको हम न्यूमरेटर में मेंशन करेंगे सेम एज, और जो नीचे वाली वैल्यू होगी जिसका बेस हमारे पास है, जिस बेस का लॉग अवेलेबल होगा, उसको हम डिनोमिनेटर में मेंशन करेंगे. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास इसकी जो शिफ्टिंग है वो कुछ इस अंदाज से होगी. लेट्स सी, log 3 over log 5 multiplied by log 25 divided by log 3. स्टूडेंट्स, अब आप ये चीज़ देख सकते हैं कि हमारे पास जो बेसिस यहाँ पर शिफ्ट थी 3 की, हमने उसको एक सिंपल फॉर्म के अंदर लिख लिया है 3 के अंदर, और ये भी हमारे पास log of 3 और log of 3 के साथ अवेलेबल है. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि अपने log of 3 को log of 3 के साथ कट कर देंगे और बाकी वैल्यूज को हम मेंशन करेंगे विच इज रिटन एज log of 25 divided by log of 5. Students, as you know that the 25 can be written as 5 square, which is also the 25. So just write it as 5 square over log of 5. Now, according to the law of logarithm, we have to write the power of value just before the log.
So it will be written as 2 log 5 divided by log 5। और स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि log 5 और log 5 फिर आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो वैल्यू बचेगी विच इज़ 2 ओनली एंड दिस इज आवर आंसर। सो दिस इज टू मच सिंपल स्टूडेंट्स। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने इस चेंज ऑफ बेस रूल की ट्रिक को याद रखना है। जब आप अपनी इस ट्रिक को याद रखेंगे तो आपके पास आपके इससे रिलेवेंट जितने भी क्वेश्चन होंगे वो बहुत ईजिली सॉल्व आउट हो जाएंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 5 लिख चुका हूँ और क्वेश्चन नंबर 5 के अकॉर्डिंग जो हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो स्टूडेंट्स हमें इसके अंदर कुछ ऑलरेडी लॉगरिथम की वैल्यूज मेंशन मिलती है। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर log of 2 की वैल्यू अवेलेबल है, log of 3 की एंड log of 5 की। तो स्टूडेंट्स हम इनको एज अ फैक्ट यूज करेंगे और एज अ फैक्ट हम इनको यूज करते हुए अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं जो इसका पार्ट सॉल्व करने लगा हूँ दैट इज द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5 एंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3 इज log अंडर रूट 3 and 1 over 3. So students, we just have to solve this value as by using the fact given in a question as log of 2, log of 3 and the log of 5. So first of all we have to convert the values of log 3 and 1 over 3 mixed fraction into a simple. So when we solve this type of question, first of all before starting this question we have to simplify the mixed fraction into a simple fraction as log. So 3 into 3 9 and 9 plus 1. So 3 into 3 9 and 9 plus 1 10. So it will be written as 10 by 3. So students 10 by 3 भी आ चुका है यहाँ पर और अब हमारे पास है स्क्वायर रूट। तो हम अगर अपने स्क्वायर रूट को शिफ्ट करें या ख़त्म करने की कोशिश करें तो हम इसको ऐसे कुछ लिख सकते हैं 10 divided by 3 whole power 1 over 2। और इसी के साथ स्टूडेंट्स हम अपने अब अगर बेसिक लॉ की तरफ आ जाए तो हमारे पास जो लॉगरिथम का लॉ है वो हमें ये कहता है कि हम अपनी पावर को लॉग से पहले भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी वैल्यू को कुछ लिखेंगे 1 over 2 log 10 over 3। स्टूडेंट्स इसी के साथ अगर आप देखें तो अब हमारे पास ऊपर वैल्यू है 10 की, लेकिन हम log of 10 को यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास फैक्ट्स के अंदर अवेलेबल नहीं है। सो हम सबसे पहले नंबर पे अपनी इस 10 की पावर को शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। जब हम इसको शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, स्प्लिट करेंगे, तो हमारी ये वैल्यू कुछ यूँ लिखी जाएगी स्टूडेंट्स 2 multiplied by 5 and it divided by 3 and then स्टूडेंट्स 1 over 2। और इस लॉग को स्टूडेंट्स हम लोग मल्टीप्लाई करने लगे हैं और अपने इसको मल्टीपल लॉगरिथम की फॉर्म के अंदर लिखने लगे हैं। तो ये हमारी वैल्यू कुछ लिखी जाएगी स्टूडेंट्स log of 2 plus log of 5 and for the division sign we use subtraction log of the value. So students just by substituting the value that are given in a question we will get the answer. The value of log 2 given in a question is 0.3010 plus log of 5 is 0.6990 minus log of 3 is 0.477 and 1. Students, when we solve these values the answer will become as, so students ये हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा just by adding these values, subtract this value and divide by 2, the answer will become this. So students this is the third part of the question number 5 and now we are going to solve the next part and which is the part number 4 of the question number 5 is log of 8 by 3. Students first of all we have to write it in a simple form as the fact we have in a question. So the value will become as solution log 8 over 3. So first of all we have to write log 2 power 3 as divided by 3. स्टूडेंट्स अब हम इसको इसके मल्टीपल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखेंगे। सो इट विल बिकम एज log of 2 power 3 minus log of 3
और ये 3 स्टूडेंट्स जो पावर में है ये हम log से पहले लिखेंगे, सो द वैल्यू विल बिकम 3 log of 2 minus log of 3, and in last just by substituting the value that are given in a question of log 2 and log 3, so the answer will become 3 into 0.3010 minus, and the log of 3 is 0.4771. So just by multiplying the 3 with this number, the value will become as 0.9030 minus 0.477 and 1. And after subtracting these two numbers, the answer will become as 0.4259. And students, now this is the answer, and now we have completed our exercise 3.3 of chapter number 3, which is logarithm. So उम्मीद है स्टूडेंट्स को आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी भी लगे होंगे और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आ चुके होंगे। बाकी पार्ट्स को एज असाइनमेंट आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह आपके लिए ये लॉ के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएंगे।